Good morning, प्यारे बच्चों. From last lecture we are explaining the nature of covalent bond and ionic bond, and in which we have already stated that there is no 100% pure covalent or ionic compound. Now, in previous classes we have started the point that the percentage of ionic character in covalent bond. Now, regarding this, we have also explained this concept. What do you mean by dipole? So, dipole is nothing but the separation of partially positive, partially negative charge at small bond distance. That is called as dipole. Simply here consider here is a AB molecule is there, and in AB molecule there is some electronegative difference is present, and we consider that the electronegativity of B atom is greater than electronegativity of atom A. So the electron density will be slightly shifted towards the atom B, and this then B atom will be appear as a partially negatively charged atom, and obviously the opposite atom A will be appear as a partially positive atom. So there is a slight charge separation as a partial negative, partial positive at bond distance, particular bond distance. And so here we are getting two pole. One is a negative pole and another is a positive pole. So if a molecule having such a two pole, we consider in this molecule dipole is present, and the molecule containing dipole is nothing but called as polar molecule, and obviously the property that possessed by the polar molecule, that is called as polarity. Now here we will say about something electronegativity. In short, electronegativity also represented by symbol En, electronegativity. Sometimes it is also explained by the X, or sometimes it is also represented by the sign delta. You have to remember that if the difference in electronegativity increases, then the percentage of ionic character also increases. जैसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, वैसे इनके बीच में जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो इन दिस वे वी सिंपली कोरिलेट these terms that the difference in electronegativity is directly proportional to the percentage of ionic character. जैसे difference in electronegativity बढ़ेगा, वैसे percentage of ionic character that compound also increases, and so the molecule will become more and more polar. देखिए बच्चों, तो अगर कोई मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब उसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर हो रहा है, मॉलिक्यूल में ज़्यादा पोलैरिटी आ रही है. तो इसका क्या फायदा होता है हमें केमिस्ट्री में समझने के लिए? तो देखिए, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाएगी, वैसे वैसे उस कंपाउंड की वाटर में सोल्युबिलिटी बढ़ती है. यानी कि इनका सीधा रिलेशन किससे लगता है? सोल्युबिलिटी से. आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको दो चार कंपाउंड दिए होंगे, पूछेंगे इनसे कौन सा ज़्यादा वाटर में मोर सोल्यूबल है और कौन सा वाटर में सबसे लेस सोल्यूबल है. Then you have to go for the check the difference in electronegativity, and आपको difference in electronegativity से पता चलेगा percentage of ionic character that we are going to be calculate in this session. तो इस प्रकार से solubility को आप इससे रिलेट कर सकते हो. दूसरी चीज़ है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के साथ. अगर कोई मेरे पास दो मॉलिक्यूल है और मुझे अगर पूछा कि इसमें से कौन से कंपाउंड का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी सीधा इससे रिलेट करते हैं. तो आपको याद रखने के लिए मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ दैट यू हैव टू रिमेंबर. जैसे ही परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, वैसे कंपाउंड की सोल्युबिलिटी इन वाटर ये भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. सोल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ जाती है कंपाउंड की. सेकेंड थिंग, जैसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है.
And third thing is that, listen carefully, third thing is that जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड की स्टेबिलिटी ये भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो बाय नोइंग द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यू कैन हैव द गेस अबाउट द solubility, the melting point, boiling point, and the bond stability of that compound. So here we will go for the measure the percentage of ionic character. The first way to check the percentage of ionic character in covalent bond is given by the scientist Pauling scale. The most important, it gives the approximate percentage of ionic character in that compound. ये approximate दे रहा है, मतलब ये इसका एनालिसिस कैसा होगा, बिल्कुल क्वालिटेटिव होगा. यानी कि हम लॉजिकली बोल सकते कि कौन से कंपाउंड में कितना, कौन से कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कौन सा कम है, उससे जो भी हमें परसेंटेज मिलता है एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं मिलता. दैट इज लिमिटेशन ऑफ पाउलिंग स्केल. तो उसने हमें क्या कर दिया, उसने हमें फॉर एग्जांपल एक सिंपल एक वैल्यू दे दी व्हिच इज प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड इसकी वैल्यू थी. यू सिंपली कंसीडर एन example of AB molecule in which B is a more electronegative, so B will be appear as a partially negative and A will be appear as a partially positive. So this is the overall polar molecule. ये polar molecule है जिसमें डायपोल भी है, डायपोल में मतलब उसमें पोलैरिटी भी है. तो बात क्या होगी कुछ होगी यहाँ पे, तो उसने हमें क्या कर दिया, सबसे पहले एक वैल्यू दे दी. उसने बोला जब भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो एटम की, इस एटम की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, बी एटम की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, देन वी विल गेट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस टू बॉन्डेड एटम्स. तो जब भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी इज इक्वल टू 1.7, रिमेंबर द वैल्यू 1.7, तभी ऐसे मॉलिक्यूल में हम बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल में 50% आयनिक कैरेक्टर होगा एंड 50% इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा. मतलब ये आधा, इसके बीच में जो बॉन्ड है, द बॉन्ड विल बी 50% आयनिक बॉन्ड एंड 50% कोवैलेंट बॉन्ड. नाउ second way, you just imagine that now the difference in electronegativity of A and B molecule, ये अगर डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो गया तभी ये बॉन्ड जाके होता है, तभी the percentage of ionic character will be more than 50%. तब हम जाके इस मॉलिक्यूल बोलेंगे, मतलब तब हम जाके बोल सकेंगे इसमें ये आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा. आयनिक बॉन्ड कब प्रेजेंट होता है, जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी इज मोर देन 1.7, तभी इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विल बी ग्रेटर देन 50%. इसका मतलब उस बॉन्ड में आयनिक परसेंटेज का कैरेक्टर 50% ज्यादा होगा, तो ओवरऑल हम उस बॉन्ड को क्या बोल सकेंगे, आयनिक बॉन्ड बोल सकेंगे. फॉर एग्जांपल जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ लिथियम फ्लोराइड. आपको पता है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लिथियम की होती है 1.0 एंड यहाँ पे फ्लोरीन की होती है 4.0. तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाएगा वो होगा 4 - 1 = 3. एंड ये जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज ग्रेटर देन 1.7. तो जब भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन एनी टू बॉन्डेड एटम्स इज
ग्रेटर देन 1.7, यहाँ पे 3 आई वैल्यू, तो 1.7 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में, तो लिथियम फ्लोराइड के बीच में ये जो बॉन्ड होगा कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। Is it clear? So in this way the bond present in between lithium fluoride is co-ionic in nature. So ionic nature होगा तो मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सोल्युबिलिटी के बारे में हम गेस कर सकते हैं। ओके, now I will say about 3 नंबर पे, जब भी difference in electronegativity of atom A and P is less than 1.7, तभी जाके हम बात कर सकेंगे, या फिर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर P will be less than 50%, यानी कि यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज इज लेस देन 50%। अगर 50% से कम है तो मतलब उसमें कौन सा नेचर ज्यादा डोमिनेंट है, तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा डोमिनेंट है। इसका मतलब ये बॉन्ड कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है HCl। अब यहाँ पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इट इज 2.1 और यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोरीन विल बी 3.3 माइनस 2.1, इट इज इक्वल टू 0.9। सो तभी जाके हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आया, 0.9 आया, 0.9 आया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1.7, ये वैल्यू 1.7 से लेस है। इसका मतलब इनके बीच में जो भी बॉन्ड है ये बॉन्ड कौन सा होगा, ये बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड। सो बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड वी कैन चेक the nature of bond present in between any two bonded atoms. Now students, you can check the full display of the screen. Please kindly make the notes and observe the things. Now the second method to measure the percentage of ion character in covalent bond, that is the Hanna and Smith method। इस मेथड से आप वो क्या कर सकते हो, मोर प्रिसाइजली यू कैन मेजर द परसेंटेज ऑफ ionic character in covalent bond. So this couple of scientists given one simple formula which with the help of this we can measure the percentage of ionic character. The percentage of ionic character is equal to 16 into difference in electronegativity plus 3.5 into the square of difference in electronegativity. With the help of this simple formula we can measure the percentage of ionic character. So by practice it is observed that the 50% of ionic character is equal to value approximate equal to 2.1, यानी कि वैल्यू जब भी 2.1 आएगी इसका मतलब उसमें 50% आयनिक कैरेक्टर होगा एंड 50% उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यानी कि बॉन्ड आधा कोवेलेंट होगा आधा आयनिक होगा। तो जब भी this value is of the difference in electronegativity, तो जब भी हम बोलेंगे जब भी difference in electronegativity it is
ऑफ दिस, देन जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। एंड सेकंड वे, जब भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 से छोटा होगा तो हम बोलेंगे द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विल बी लेस होगा। यानी कि इस केस में वो इसमें आयनिक बॉन्ड ज्यादा डोमिनेंट रहेगा एंड यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला we can easily measure the percentage of ionic character in covalent bond. Let's take an example how to calculate the percentage of ionic character according to the Haney-Smith formula or Haney-Smith method. So simply here is a one simple problem. Calculate the percentage of ionic character in cesium chloride। इसमें आप लोगों को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मेजर करना है। नाउ यू शुड नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हियर सीसीएम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 0.7, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, एंड क्लोरीन का आप सभी को पता है 3.0 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इसको सिंपली डेल्टा साइन से भी शो करते हैं। इट इज इक्वल टू 3.0 माइनस 0.7 इक्वल टू 2.3। यानी कि यहाँ पे आपको डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल गई, 2.3 मिल गई। देखिए बच्चों, अभी आपको क्या करना है, हैनी-स्मिथ का फॉर्मूला अप्लाई करना है टू मेजर द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना है। तो इसमें अगर आपको इस प्रकार से अगर आपको आयनिक कैरेक्टर पूछेगा तो जरूर पूछेगा अकॉर्डिंग टू हैनी-स्मिथ के अनुसार, नहीं तो आपको पूछा जाएगा पाउलिंग्स के अनुसार, नहीं तो ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। तो उसके अनुसार आप लोगों को परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछा जाएगा। तो इसमें कोई मतलब डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाए, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मेजर कर रहे हैं सीसियम क्लोराइड में अकॉर्डिंग टू द हैनी-स्मिथ मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 into delta is nothing but difference in electronegativity. We have already measured the difference in electronegativity. Delta is equal to 2.3 plus 3.5 delta square. We'll put the value of delta here. So it is a 16 into 2.3 plus 3.5 into the square of 2.3. Here we'll get value is equal to about 68.6 and यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 36.8 प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके तो वैल्यू आ रही है 18.51। सो दोनों का समेशन हो जाएगा लगभग 55 ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.1 के बराबर। सो लगभग इसमें इतना परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, तो आप देख रहे हो इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इट इज मोर देन 50%। आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50% है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन सीसियम क्लोराइड इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डोमिनेटली इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सो इन दिस वे we can take in here hydrogen chloride, sodium chloride, and accordingly we can measure the percentage of ionic character. Okay, so this is the way to measure the ionic percentage of ionic bond percentage in a covalent compound. Now third way to measure the
percentage of ionic character in covalent bond, that is from dipole moment, इसको हम ग्रीक वर्ड म्यू से शो करते हैं, म्यू. Now in next video we will have the discussion about the dipole moment. What do you mean by dipole moment? What is its formula? And how to calculate the dipole moment? We will learn in next video. Now here we can directly going to measure the percentage of ionic character in covalent bond by knowing the dipole moment. So the percentage of ionic character is equal to mu observed divided by mu calculated into 100, and by applying this formula we have the percentage of ionic character in covalent bond. Simply here we will take one simple example that here we calculate the percentage of ionic character in HCl में ionic character कितना ऐसा पूछा है, ठीक है. Now देखिए इसमें ऐसा आ जाएगा if observed dipole moment is 1.03 d stand for the debye, which is unit of the dipole moment, and calculated dipole moment is 6.12 debye. तो देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल की डायरेक्ट मैंने वैल्यू ले रखी है यहाँ पे, दोनों भी टर्म्स की. ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट 1.03 एंड कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट 6.12. देखिए मैंने एग्जांपल्स में ऐसा रहेगा, आपको म्यू ऑब्जर्व जो भी प्रैक्टिकल है आपको हमेशा एग्जांपल में 100% दिया रहेगा, लेकिन आपको म्यू कैलकुलेटेड या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डाइपोल मोमेंट म्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है, इट इज Q into R. Q is the amount of charge and R is the distance between two atoms. तो आप लोगों को म्यू डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को एग्जांपल में कितना चार्ज है और कितना R वैल्यू यानी डिस्टेंस वैल्यू ऑलरेडी दी होती है, उसी की मदद से आप क्या कर सकते हो, डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो. वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आप यहाँ पे रख के परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मेजर कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे, हालांकि हमने डाइपोल मोमेंट को हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है तो वहाँ पे उसका कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे. तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ले रखी है. तो इसका सॉल्यूशन के तौर पे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100. तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1.03 अपॉन 6.12, और यहाँ पे लगभग हमारी वैल्यू आ जाएगी 16, लगभग वैल्यू आ जाती है 16.83%. तो देखिए इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इट इज इक्वल टू 16.83%, which is less than 50%. यानी कि इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा HCl में, वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये होगा ना कोवेलेंट बॉन्ड. So in this way we can measure the percentage of ionic character in covalent bond by three methods. First method is Pauling method or Pauling scale, second is the Hanai-Smith scale, and third is the from dipole moment. We can easily measure the percentage of ionic character. Thank you so much.